As a chartered accountant, it is one of the most important topic that you are going to find, and that is how to create a premium proposal that clients accept. क्योंकि सीए प्रैक्टिस की जर्नी के अंदर, सीए एडवाइजरी प्रैक्टिस की जर्नी के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि ऐसा प्रपोजल मैं कैसे बनाऊं सो दैट इट रियली थ्राइव्स एंड मेक अ सॉलिड इम्पैक्ट. Majority times it's just a copy paste. Maybe little bit of AI, maybe little bit of formatting, maybe little bit of coloring. But at the deeper level, आप अपने प्रपोजल को किस तरह से बेटर बना सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, so that you get those amazing clients. Now, before you move forward to the video, if you have not seen any of the video, my name is Shubham Mittal, and I help chartered accountants attract quality clients and build premium practice in the niche advisory sector. Now, I create these videos because I want to share my knowledge, my perspectives, my ideas with you so that you get a lot of value out of it. And whenever you feel ready and you want to work on your practice, you want to grow it, and you want to invest in yourself, then probably we have a conversation and maybe we work together. All right. With that, let's get into the video where I'm going to share a lot of nuggets, not nuts, nuggets. Okay. And one important thing before you actually move forward, अगर आपके पास कोई नोटपैड या पेन नहीं है, आई रियली वांट यू टू टेक इट एंड make notes because this is going to be very relevant for you and important as well, and you don't want to watch another video just passively. I want you to watch this video actively, make notes, and if you have questions, put them in the comment section below. With that, let's move to the actual crux of the video. Let's go inside. All right, so this is the entire roadmap of today's video: how to create premium proposals that clients actually accept. Now we are going to talk about the core message. Why most proposals fail? Because majority times clients ask for the proposal, you send the proposal, and then you wait and wait and wait. And now client is making you dance on their fingertips. This is not the ideal situation we want. So that's why we are going to discuss 7 principles, in fact, 8 principles in total. Then we are going to see how to actually build a premium proposal, common mistakes to avoid, and the last final key takeaway. All right, so let's start with core message first, and that is a proposal does not sell the service. द कॉन्वर्जेशन अराउंड द प्रपोजल सेल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने प्रपोजल भेज दिया तो हमारी सर्विस बिक गई. नो, it all depends on your discovery call, your discovery meeting, your initial conversations, how things are flowing. Because proposal comes after the discovery meeting. So proposal is not going to make or break, but if it is not done right, it can nullify the impact of your discovery call as well. And that's why proposal is very important. Premium clients do not buy your list of services, they buy confidence, clarity, and certainty. The proposal should support the discussion, not replace it. हाँ सर, प्रपोजल भेज दो, मैं बताता हूँ आपको देख के. एंड वो सिर्फ आपको ही नहीं बोल रहे हैं, 4 सीए और है जिनको उन्होंने सेम चीज बोली है, एंड दे वांट टू कंपेयर लाइन बाय लाइन. एंड आज तो मे बी चैट जीपीटी है, दे कैन पुट ऑल द प्रपोजल्स देयर एंड दे कैन आस्क व्हाट इज द बेस्ट आउट ऑफ ईच एंड मेक अ बेस्ट प्रपोजल एंड देन पिच टू ऑल फोर सेइंग ये प्राइस में आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास और भी रेट्स आई हैं. एंड दैट्स व्हाट दे डू इन द रियल वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज द कोर मैसेज कि प्रपोजल सेल नहीं करता है सर्विस, आपका डिस्कवरी मीटिंग या डिस्कवरी कॉल एंड इनिशियल एंटायर रेपुटेशन मैनेजमेंट, दैट डज इट. विद दैट, लेट्स मूव टू व्हाई मोस्ट प्रपोजल्स फेल. सबसे बड़ी गलती एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो करते हैं वो ये है: सेंड एज अ पीडीएफ और व्हाट्सएप मैसेज विदाउट अ डिस्कशन. कॉल हो गया, क्लाइंट ने बोल दिया हाँ भेज देना, आपने उनको कर दिया व्हाट्सएप या ईमेल. The worst way to handle this, because now you have given away the entire power of your decision making to them. Now they will dictate the terms because power उनके हाथ में चली गई है as soon as you have sent the proposal. Client interprets the proposal alone. Imagine one thing, मेरी सर्विस क्या आप मुझसे बेहतर समझ पाओगे?
नो। क्या आपकी सर्विस जिस तरह से आप काम करते हो, क्या आपका क्लाइंट आपसे बेहतर समझ पाएगा? नो। देन व्हाई डू यू सेंड द प्रपोजल विदाउट हैविंग अ डिस्कशन, विदाउट एक्सप्लेनिंग देम द प्रपोजल? बिकॉज एवरीबडी डज दैट, एंड बिकॉज एवरीबडी डज इट, majority ऑफ द प्रॉब्लम अकर्स देयर, एंड सभी लोग सेम चीज से दुखी हैं कि प्रपोजल जाने के बाद कितने फॉलो अप करें, कितनी बार करें, क्लाइंट जवाब नहीं देता है, पैसे कम करवाता है, बहुत सारे इश्यूज। क्योंकि प्रॉब्लम क्लाइंट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे प्रोसेस के अंदर है। सो स्कोप गेट्स मिसअंडरस्टूड बिकॉज आपने क्या लिखा है वो आपको समझता है, वो क्या समझ रहे हैं आपके प्रपोजल को पढ़ के, यू डोंट नो दैट। क्लाइंट कंपेयर्स ओनली फीस, क्योंकि उनके पास कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेजोरिटी टाइम के लोगों को प्रपोजल भी नहीं पता क्या बनाना है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, और वही कॉपी पेस्ट हर जगह चल रहा है। सो क्लाइंट को ईजी मिल जाता है कंपेयर करने के लिए कि यार इसकी फीस इतनी है, इसकी फीस इतनी है, लेट्स सी। वैल्यू गेट मिसलेड completely, and proposal feels like a quotation instead of an advisory recommendation. And that's the mistake of creating proposals. And फिर आपको लगता है कन्वर्ट नहीं हुआ, नेगोशिएट हो रहा है, क्लाइंट अच्छे नहीं है, मे बी मार्केट बुरा है, मे बी सीए होके ऐसा ही काम चलेगा, ये तो नॉर्मल हो चुकी। नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, यू हैव मेड इट नॉर्मल। एंड इफ यू आर ऑन दिस वीडियो, आई recommend you to look beyond and expand your horizon, because there are possibilities, and this video will show you how. Now, principle one, never send a proposal without presenting it. I had a very detailed discussion with two of my clients, and उन्होंने बोला कि क्लाइंट मानता ही नहीं है। आई सेड डू अ रोल प्ले with me and let us have the conversation. I become the client, you become the CA, and vice versa. And I was able to diagnose कि हमें कई बार हैंडल करना ही नहीं आता सिचुएशन जब क्लाइंट ये चीज को बोल रहा है। तो सो स्केड्यूल अ प्रेजेंटेशन मीटिंग फर्स्ट, ताकि आप उनको पूरा प्रपोजल गो थ्रू करवा सके। अगर आपने पहले ही सुनते ही आइडिया रिजेक्ट दिया, अरे ऐसा नहीं होता, हमारा क्लाइंट तो प्रपोजल पहले मांगता है, यू हैव लॉस्ट द गेम। एंड इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू एट द फर्स्ट स्टेज, they will not respect you throughout your engagement, no matter how you feel, but they are not going to respect you. Yes, you may be signing their reports, you may be giving them some advisory. For that purpose they will respect you, but overall, as a human being, as a person, as an advisor, they will not. Because अगर वो आपकी बाउंड्रीज को नहीं समझ रहे, they don't understand and repeat respect your process, there is something wrong about it. वॉक द क्लाइंट थ्रू योर रिकमेंडेशंस, क्योंकि अगर आप अपने प्रपोजल को नहीं समझा पाएंगे तो क्लाइंट अपने हिसाब से समझेगा, और जो हमें नहीं चाहिए। एक्सप्लेन द थिंकिंग बिहाइंड द सोल्यूशन, क्या सोच के आपने वो बनाया है, क्यों आप ये रिकमेंड कर रहे हो, और इसका क्या वे फॉरवर्ड है। आंसर क्वेश्चंस लाइव, एंड दिस होल क्राफ्ट अराउंड इट विच आई कवर इन द कमिंग वीडियोज एज वेल। बट ट्राई हमें करना है कि मैक्सिमम सवालों का जवाब उसी कॉल के ऊपर जवाब दें। एंड उसके बाद आप उनको प्रपोजल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न द प्रपोजल इनटू अ डिस्कशन डॉक्यूमेंट, बिकॉज प्रपोजल आप उनको भेजो, मैं ये नहीं कह रहा प्रपोजल भेजना ही नहीं है, बट फर्स्ट मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रपोजल ऑल अबाउट। उसके बाद उनको दो, उसके बाद कोई डिस्कशन चाहिए तो करो आप। ओके। सेकंड प्रिंसिपल, सेट द नेक्स्ट स्टेप बिफोर एंडिंग द डिस्कवरी कॉल। डिस्कवरी कॉल के बाद क्लाइंट ने बोल दिया हाँ सर आप भेज देना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है आपका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस उन्होंने डिक्टेट कर दिया कि भाई प्रपोजल भेज देना आप। नेवर लीव द नेक्स्ट स्टेप वन ओपन एंडेड, नहीं तो सामने वाला उसका कमांड ले लेगा एंड दे विल डिक्टेट। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस आफ्टर डिस्कवरी कॉल, क्या होगा उन्हें पता ही नहीं है, और जब उन्हें नहीं पता होता है तो बोलते हैं प्रपोजल भेज देना। स्केड्यूल द प्रपोजल मीटिंग इन एडवांस, कि सर 3 दिन में ऑन दिस डे लेट्स मीट, so I can showcase you the entire proposal. I can discuss this in length, and after that, you can take a call. Create expectation and momentum, because वो नहीं होगा एंड आपको सिर्फ ट्रांजैक्शनल लेवल पे उनसे बात करनी है, दैट डजंट वर्क। रिमूव अनसर्टेनिटी बिफोर द क्लाइंट टास्क। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी क्लाइंट को, वो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेगा, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। तो हमारा काम ये है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है डिस्कवरी मीटिंग। हर मीटिंग के बाद, हर कॉन्वर्जेशन के बाद आपको डिक्टेट करना है, आपको बताना है रिस्पेक्टफुली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। थर्ड प्रिंसिपल, डू नॉट स्टार्ट विथ योर ऑफर, रिकैप द करंट सिचुएशन। उसके बाद रिकैप द डिजायर्ड आउटकम, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, देयर इज सम करंट सिचुएशन, देयर इज सम डिजायर्ड आउटकम, एंड देन कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग। Do not assume any single thing. Then present
योर डायग्नोसिस कि आपने उस डिस्कशन के बाद क्या पकड़ा, आपको क्या लगता है क्या रिकमेंडेशन सॉल्यूशन होना चाहिए, एंड देन डिस्कस द इन्वेस्टमेंट व्हेन यू फील द क्लाइंट हैज अंडरस्टूड द वैल्यू। उसके बाद प्राइस के ऊपर आना है। प्राइस पहले नहीं आएगी कभी भी, पहले समझ में आना चाहिए क्या बंदे को समझा है, क्या वो अग्री करता है कि दिस इज द राइट सोल्यूशन फॉर माई प्रॉब्लम। बिकॉज अगर वो वहीं पे अग्री नहीं करेगा, देन यू शोकेस द प्राइस, देन दे आर गोइंग टू कट शॉर्ट यू। दे आर गोइंग टू से अरे सर ये इतने का है, 80,000 का प्रपोजल है, तो सर ये दो चीज मत करो ना, ये इसमें से इसका 20,000 हटा दो। जब आप पहले ही चीज़ों को क्लैरिफाई कर लोगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, बट मेजोरिटी लोग ये नहीं करते हैं एंड बाद में क्लाइंट चूज एंड पिक करता है कि हाँ सर ये 3 चीज़ कर दो, ये 5 मत करो और उसके लिए इतना पैसा कम कर दो। व्हाई? बिकॉज़ हमने एग्ज़ाम्पल रॉन्ग सेट किया है, हमने क्लैरिफाई नहीं किया, हमने कन्फर्म नहीं किया कि जो हम उनको बेचना चाह रहे हैं वही उनको चाहिए। ऑलराइट, विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल व्हिच इज प्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट विद कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस। नेवर अपोलोजाइज फॉर प्राइसिंग, डू नॉट डिफेंड द प्राइसिंग बिफोर क्लाइंट क्वेश्चंस इट। आप बोलते 80,000 का प्रपोजल है सर, बिकॉज हम ये कर रहे हैं, बिकॉज हम वो कर रहे हैं। अरे प्लीज वेट, पॉज, लेट देम रिफ्लेक्ट। हो सकता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल हैव नॉट लर्न अबाउट दिस प्राइसिंग साइकोलॉजी। सो हमें लगता है हमेशा कि यार ये प्राइस उसको हाई लगा तो पहले ही जस्टिफाई करने लग जाते हैं। रॉन्ग अप्रोच इफ यू रियली वांट टू थ्राइव इन योर प्रैक्टिस। State the investment calmly. Pause after stating the number. गैप को फिल करने के लिए कुछ भी अगर आप बोलना चाह रहे हो, प्लीज रेजिस्ट दैट। लेट द क्लाइंट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड लेट यू मेक द डिसीजन, नॉट देम। क्योंकि अगर आपने जैसे ही उनके हाथ में कुछ भी छोड़ा ना, वो अपने आप कमांड ले लेंगे फटाफट, एंड दे आर वेरी स्मार्ट, यू नो दैट। यू माइट बी रनिंग 5 करोड़ का प्रैक्टिस, दे आर रनिंग मे बी 50 करोड़ का धंधा। सो द ओनर्स आर वेरी स्मार्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा प्रोसेस हमें पता है और हमें एक्सट्रीमली क्लियर होना पड़ेगा उस पे। दैट्स वेयर दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री आल्सो, कि ये बंदा कैसे काम करता है एंड दिस पर्सन इज डिफरेंट। एंड दैट्स वेयर आई वर्क विद माय क्लाइंट्स एज वेल, सो दैट दे स्टैंड आउट not only on the surface, at the deeper level as well. Okay, so let's go to the next principle, which is use silence strategically. Just a moment. All right, do not rush to fill the silence. Do not justify immediately. Do not discount prematurely. First discuss कि भाई वैल्यू में इश्यू लग रहा है, क्या लग रहा है। क्योंकि डिस्काउंट आपने प्रीमेच्योरली कर लिया ना, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती है। मेकिंग श्योर कि आप उसको वैल्यू ज्यादा दे दो, प्राइस कम नहीं करो। दैट्स वेयर क्रिएटिविटी लाइज। पैसा तो कोई भी कम कर देगा। साइलेंस कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंस। साइलेंस हैज इट्स ओन पावर, बट इफ यू एक्सप्लेन टू मच, समथिंग स्पेशी। एंड आपको भी पता है, मार्केट में जाके आप ये चीज ट्राई कर लो, आपको पता चलेगा कोई बंदा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है ना, समवेयर यू फील किया समथिंग इज रॉन्ग। कॉन्फिडेंस क्रिएट कॉन्फिडेंस। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि यार बंदा सही है। लेट्स गो विद द ओके, लेट्स गो विद द प्रिंसिपल 6, आस्क बेटर क्वेश्चंस। आस्क what questions you can answer. Shift the conversation from opinion to clarity. Reduce resistance through conversation. And that's an art of doing a discovery call in the right fashion. And of course, we are going to cover some videos in the future as well. Help the client feel safe deciding. क्योंकि उन्हें ये नहीं रखना चाहिए कोई रिस्क इसके साथ काम करने, उन्हें रखना चाहिए रिस्क फ्री डिसीजन है, दिस इज द राइट थिंग आई एम डूइंग। प्रिंसिपल 7, नेवर नेगोशिएट अगेंस्ट योरसेल्फ। क्या मतलब है उसका? डू नॉट रिड्यूस फीस बिफोर द क्लाइंट ऑब्जेक्ट्स। डू नॉट ऑफर डिस्काउंट फर्स्ट, अंडरस्टैंड द कंसर्न फर्स्ट। कि कंसर्न क्या आ रहा है भाई, आपका दिक्कत कहाँ आ रही है। प्राइस में इश्यू है, स्कोप में इश्यू है, कुछ और चीज में इश्यू है, और क्या पता उनको आप में इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। आस्क व्हाट इज मेकिंग द क्लाइंट हेजिटेंट, लिसन फर्स्ट रिस्पॉन्ड लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंसिपल 8, एंड विथ द क्लियर नेक्स्ट स्टेप, जो हमने पहले भी बात की थी। डू नॉट एंड विथ लेट मी नो सर, लेट मी नो मैम। बिकॉज लेट मी नो का मतलब है वो बोलेंगे प्लीज सेंड द प्रपोजल, आई विल गेट बैक टू यू। एंड दैट नेवर गेट बैक हैपेंस नेवर। चाहे वो एचआर हो जॉब के केस में, या फिर क्लाइंट हो या प्रोस्पेक्ट हो प्रैक्टिस में। लेट मी नो नहीं बोलना है।
डिफाइन द एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस, माय रिकमेंडेशन एंड द एंटायर प्रपोजल. Send the engagement letter today. Whenever you discuss that, प्लीज इंश्योर कि भाई आज एंगेजमेंट लेटर भेजना है तो भेजना है. फॉलो अप ऑन स्पेसिफिक डे. स्केड्यूल ऑनबोर्डिंग आफ्टर कंफर्मेशन. पॉइंट क्या चल रहा है एंड विद क्लियर नेक्स्ट स्टेप. आप कुछ भी जर्नी पे हो अपनी पूरी क्लाइंट एक्सपीरियंस के दौरान आपको उनको क्लियरली बताना है कि भाई क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा. कोई क्लाइंट ने आपको बोला यस लेट्स मूव फॉरवर्ड, ऑलराइट आई सेंड द एंगेजमेंट लेटर टुडे एंड द पेमेंट टर्म्स आल्सो, जो भी आपने तय किया इनके साथ, एडवांस है 50% एडवांस है, व्हाटएवर इट इज, यू एक्चुअली डिफाइन दैट. Schedule onboarding after confirmation, maintain momentum, reduces uncertainty. क्योंकि क्लाइंट को पता है कि आई मीन सेफ हैंड्स, मुझे पता है सामने वाला क्या क्या करेगा. क्योंकि हम जब नहीं बताते हैं ना, क्लाइंट बोलता है शायद इनको नहीं पता है कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए इनको. सो वी हैव टू इंश्योर वी मेंटेन आवर अथॉरिटी. इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को राजा समझेंगे और सामने वाले को कुछ नहीं समझेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ सिर्फ एक होना चाहिए. वी वांट टू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ पैरिटी. वी डोंट वांट टू हैव आवर पोजीशन हियर एंड क्लाइंट हियर एंड वाइस वर्सा भी. क्लाइंट यहाँ और हम यहाँ, वो भी नहीं होना चाहिए. इट्स इक्वल रिलेशनशिप. वी आर प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड दे आर गेटिंग सम वैल्यू. उसके लिए वो पैसा पे कर रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग एनी चैरिटी फॉर अस, राइट? सो विद दैट लेट्स गो टू बिल्डिंग अ प्रीमियम प्रपोजल. आई नो वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, but I just wanted to make sure I provide the complete value in this rather than making it cut short. So define the transformation. आपके प्रपोजल के अंदर फोकस करना है ऑन द फ्यूचर क्लाइंट वांट्स. डिस्क्राइब आउटकम. सिर्फ जीएसटी ऑडिट करेंगे उसके अंदर हम चार चीज आपके लिए करेंगे, हम फिर इनकम टैक्स का ही टैक्स ऑडिट भी कर देंगे उसके अंदर ही पांच चीज ही करेंगे. कम ऑन, व्हाट इज द आउटकम फॉर देम, व्हाट इज द थिंग दैट दे आर गेटिंग. एंड इफ यू आर डूइंग द एडवाइजरी यू नो द आउटकम्स. आप किसके लिए काम कर रहे हो. कंप्लायंस के अंदर हो सकता है कोई ज्यादा आउटकम नहीं हो, बट इन द एडवाइजरी यू नो देयर इज सम आउटकम ऑफ दैट. Build around your framework. In my coaching I teach people how you can create your framework so you stand out as an authority. एंड जब आपका फ्रेमवर्क होता है तो आपका सारा ऑफर उस फ्रेमवर्क के अराउंड बनता है, जिसके वजह से आप क्लाइंट के ऊपर कंप्लीट प्रोसेस को होल्ड कर पाते हो और उन्हें समझा पाते हो इन इजी स्टेप्स. क्योंकि जितना इजी आप अपनी तरफ से करोगे उतना ही क्लाइंट के लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक सेंस कि हाउ यू आर डिफरेंट देन ऑल ऑफ द पीपल who are in the market competing with you probably for the same gig. Make the process visible to the client. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, इंक्रीज परसीव वैल्यू करनी है आपको अपने प्रपोजल की. यार वैल्यू तो मैं दे रहा हूँ लेकिन उसकी परसीव वैल्यू कैसे इंक्रीज करूँ. मे बी आप मीटिंग्स को बोलो स्ट्रैटेजी सेशंस. Now, this is not a gimmick. This is how you position yourself, your value. Because कई बार हम इतना काम कर देते हैं ना, बट हम सामने वाले को बता नहीं पाते हैं कि कितना काम किया है. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. सो reframing reports as executive insight reports. Now, these are some just examples. Reframe spreadsheets as dashboard. You see, डैशबोर्ड कितना प्रीमियम लगता है कि कुछ तो अच्छा होगा. हो सकता है वो स्प्रेडशीट हो बट उसके अंदर आपने थोड़ा सा एआई का यूज करके यू हैव मेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. Reframe support as priority support. Reframe tax planning as a roadmap. So यहाँ पे उन चीजों को रीफ्रेम करना है, मिसलेड नहीं करना है. ओके, रीफ्रेम करना है सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला इंसान उस चीज को समझ पाए उस तरीके से जैसे हम समझाना चाहते हैं. इफ आई से मीटिंग बोले हाँ हाँ मीटिंग में क्या होगा, बट दिस आर गोइंग टू बी स्ट्रैटेजी सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डू एक्स वाई जी. हाँ, आई गेट इट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो रिड्यूस द बाइंग रिस्क. क्योंकि हर इंसान खरीदने से पहले चाहता है कि उसका रिस्क खत्म हो. आप भी कुछ खरीदते हो तो आपको चाहिए कि यार अमेज़न से आप खरीदते हो, आपको चाहिए कि रिटर्न इसमें पॉलिसी है क्या? हाँ, पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न कर देंगे, चलेगा. सेम साइकोलॉजी प्रिंसिपल. उनको हमको कैसे कर सकते हैं बाइंग रिस्क को. पहले तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि भाई एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है हर इवेंट पे. 90 डे जो भी आपका पीरियड है फॉर योर एडवाइजरी, एक्शन प्लान क्या है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है. ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज इट्स अ लाइव प्रोजेक्ट, थिंग्स में गो ऊपर एंड नीचे, बट व्हाट इज योर आइडियल एक्शन प्लान.
Monthly reviews, quarterly strategy मीटिंग्स, डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल। छोटी छोटी चीजें हैं बट उनका परसीव्ड वैल्यू अगर नहीं बताएंगे तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। एड सपोर्टिंग रिसोर्सेज, आपके जॉब को और बेहतर से दिखाने के लिए आप उसमें क्या ऐसा कर सकते हो, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। Now, depending on your niche, depending on problem you solve, depending on the solution you provide, you can decide what are the additional supporting resources I can provide to my client, which has less cost but high creativity and high value to the client. And that is something another element which makes you stand out, to showcase in the market how you are different. And we work on this very detailed way with my clients. Now, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, if you have ever seen all this in any video, ask yourself two things: why I have not applied it, and if I have applied it and still did not get the result, I'm for sure you missed one step or two steps somewhere in the process. And first of all, I have done my research. There are no videos on any channel that talks about how chartered accountants can grow their practice. And I wanted to bring my knowledge by YouTube channel so that people can become more aware. Because many people has this hesitation, I believe, कि यार ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हम सालों से ये काम करते आए हैं। हमने सबसे पूछा, सब भी वही कर रहे हैं। If you really want to thrive, you want to find out a new way of doing things in 2026 and onwards. Price with confidence, price the outcome, not the hours. क्योंकि hours की अगर आप कीमत लगा रहे हो तो you are not valuing your own time, your expertise. Use anchor before discussing investment. मे भी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, एंकरिंग क्या होता है। कुल मिला के बात ये है कि आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो 1 लाख की फीस ले रहा हूँ ना, उसके सामने वैल्यू क्या है, उसके सामने फायदा कितना है तुमको, और उसके सामने और क्या एंकरिंग हो सकती है। मे बी आपके मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शन है, मल्टीपल लाइक ऑफर मल्टीपल ऑप्शन। फ्रेम द प्राइस एज एन इन्वेस्टमेंट। सर ये फीस रहेगी, फीस नहीं सर, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यूज लॉस अवर्सन टू शो द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। अगर आप सर ये नहीं करते हो तो इसके ये 4 इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। एंड सी, हम प्रपोजल की बात कर रहे हैं बट अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ क्राफ्ट कम्स डाउन टू योर डिस्कवरी मीटिंग। बिकॉज वहां पे चीजें सही होगी ना तो आगे की चीजें अपने आप अच्छी होने लगेंगी। प्राइस बेस्ड ऑन द स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिजनेस इम्पैक्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आपके पड़ोसी ने, आपके कॉम्पिटिटर ने, आपके नेबर ने क्या किया था। यू आर डूइंग इट बेस्ड ऑन द स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिजनेस इम्पैक्ट एंड हाउ यू आर एबल टू शोकेस द वैल्यू to your client. All right. Common mistakes, very quickly we'll cover that. Emailing or WhatsApping the proposal without a discussion, ये हमने already discuss किया है। Beginning the conversation with the pricing, talking more than listening, इसके लिए मैंने बोल्ड किया है, वो नहीं करनी है गलती। Apologizing for the investment, discounting before understanding the concern। आपको एग्जैक्ट कंसर्न पता ही नहीं, आपने बोला अरे सर चलो फीस कम कर देते हैं थोड़ी, आप तो काम तो चालू करो। Filling every moment of silence, do not do that. Ending without agreeing on the next step, do not make that mistake, please. And with that, we come to the final part of the video, final takeaway. Client do not buy a document. They buy confidence, clarity, and certainty. A premium proposal feels like a roadmap to the client's desired outcome and the future. Strong proposals make better clients. And remember the first thing हमने क्या बात की थी? A proposal does not sell the service. It is just complementing the discussion. So you have a common point to discuss and take the relationship forward. I hope you found this value useful, this video useful. And if you did that, and there were some points where you had questions, you had insights, you had some moments where you were reflecting, please share them in the comment section below. Or maybe you can WhatsApp me at 96198 because the more you share with me, the more I understand how much value you are getting from these videos, and accordingly I create next set of videos for you so I can continue to serve the value. With that, I'll see you in the next video. Until then, keep implementing things that you are learning in these videos and make sure whenever you get the right results,
You drop me a WhatsApp, you drop me an email, or maybe a comment in the YouTube. With that, I'll see you soon. Take care. Keep thriving.